A warm welcome to you all students. Today we are going to start a new chapter and that is Principle of Inheritance and Variation. So first of all we are going to begin our chapter with the very basic term that is genetics. Okay. So we all know that organisms reproduce, that is, they form the offspring which are of the same kind like their parents. The resulting offspring most often do not totally resemble the parent. So, the branch of biology that deals with the inheritance and variation is termed as genetics. So, if you are asked that what is genetics, that means the branch of biology that deals with the inheritance and variation. Now, what does this two term means? Inheritance mean the process by which characters are passed on from one parent to the progeny. Okay? Inheritance means the process by which the characters are passed on from parent to the progeny. Progeny means to the children, to the offsprings. Okay. Next, what is variation? Variation is the degree by which progeny differ from their parents. For example, if there is one couple, okay, mother and father, so obviously the child which will be the product of the reproduction process will not be totally resembling either of its parent, but rather the child will be a combination. It will be a recombined product. It will be the progeny or the child will be something having some characters of father also and some of mother also, but that too in a very different manner, isn't it? We are not completely having one character of one parent. We are just a blending of both the characters of both our parents, isn't it? So that but in some cases what happens is that some children resemble 80% or 70% to either of their parent, isn't it? Like we say na ki he's totally gone on his father, okay, or he resembles her mother, his mother, isn't it? She resembles her mother too much, she's very much similar to her mother, and so on. So why we say? Because there is a different degree of variation. Some may variate very much from their original parents, okay, the morphology of their parents. Some are very much similar, some are very much different from their parents. So that is the degree of variation, ki how much a child is differing from this or her parent. Okay, so basically this genetic this is a branch of biology which deals with the inheritance and variation in characters. Okay, now these characters which we are talking about, okay, character in the sense you can take the height of the child, you can take the color of the child, the color of the eye color of the child, then the pattern of the hair, then whether the child is left handed or right handed, any character. That character can be anything of that particular child, isn't it? Now we all know that characters are what are how these characters are produced. These characters are directly or indirectly related by the expression of a particular gene. Okay, means gene is responsible for a particular character, and that is why the word genetics is derived from the word genes. Okay, so what is gene we will be discussing later on in this chapter, but our main basic thing which we should know is, first of all, that what is genetics. Okay, then number 2 is what is inheritance and what is variation. So now we very well know that it is a branch of biology that deals with inheritance plus the variation in the character of a progeny, of a individual, not only progeny, of an individual. Okay, so this is the genetics. Next is, now here you can see there is a little bit elaboration of the inheritance and variation pattern. You can see these are the different couples having children. You can see the similarities and differences, isn't it? And some of the children
You can see they are just resembling the parent while some of them are totally different from the parent, isn't it? So that is the degree of variation. तो जितनी ही सिमिलैरिटीज़ होगी पेरेंट्स और चिल्ड्रन में उतनी ज़्यादा वेरिएशंस का मतलब क्या होगा, वो कम होंगे, वेरिएशन कम हुआ, इसीलिए क्या है, चाइल्ड जो है वो सिमिलर पैदा हुआ, सिमिलर टू हिज और हर पेरेंट। और जितनी ही वेरिएशन, जितनी डिग्री ऑफ वेरिएशन ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा क्या होगा, डिसिमिलैरिटीज़ होगा फ्रॉम द पेरेंटल कैरेक्टर्स, इज़न्ट इट? Now let's see a brief history of why this concept of genetics or how this concept of genetics developed. So human knew before 8000 to 1000 BC variation is due to sexual reproduction. ठीक है, मीन्स कि ह्यूमन्स को ये पहले से पता था, बहुत सालों पहले पता था कि ये जो चेंजेस, ये जो प्रोजेनीज प्रोड्यूस हो रहे हैं, इनमें जो वेरिएशंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे प्लांट्स हो, तो वो क्यों हो रहे हैं, दैट इज़ द रिजल्ट ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. देखिए, एनी टाइप ऑफ द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच टू इंडिविजुअल्स आर इन्वॉल्व सच दैट द zygote is formed is very much a combination of the two parental characters. That type of reproduction is what? Sexual reproduction. And in asexual reproduction we know that it involves only one parent. So wherever there is an involvement of only one parent, there will be no genetic recombination, because there is simply one parent, all the genes will be same, and that same gene will be inherited into the next progeny, into the next generation. Then his generation will be also having the same type of gene, and so on. But in sexual reproduction is what? There is a combination or mixing up of the genes of both the paternal and the maternal types, isn't it? Then exploited variations present in wild plants and animals to selectively breed and select organisms with desirable characters. This means that after human came to know that these variations are because of the result of sexual reproduction, उसके बाद जैसे उनको ये बात पता चल गई तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने खूब सारे एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए टू प्रोड्यूस सम न्यू वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स, सम न्यू ब्रीड्स ऑफ एनिमल्स. ठीक है, मतलब एक्सपेरिमेंट जो है वो साइंटिस्ट्स ने स्टार्ट कर दिया. ठीक. Then artificial selection and domestication of wild cows, Sahiwal cows in Punjab. Okay, one example is given that artificial selection, we have studied artificial hybridization in plants, isn't it? Similarly, artificial selection in animals is also done. तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में वी हैव स्टडीड ना कि जो डिज़ायरेबल प्लांट का हमको पॉलन ग्रेन चाहिए, सिर्फ उसी को हम अलाउ करेंगे स्टिग्मा पर लैंड करके पॉलिनेट करने को, ताकि फर्टिलाइजेशन हो और जो हम चाह रहे हैं वैसा प्लांट प्रोड्यूस हो, इज़न्ट इट? तो उसी तरह से क्या करते हैं एनिमल्स में भी कि desirable egg can be fused with the desirable sperm of a particular animal or a species in order to develop a new breed of animal. Okay, so that means this branch is not only beneficial to study the inheritance pattern, but also it helps us to understand and to develop or to exploit the genes, to exploit the characters in order to develop some new characters, isn't it? So this is the use of genetics, you can say, in other words. Okay, so let's again see that some terminologies associated with this genetics. Number one is genetics. Genetics is the branch of life science that deals with the study of heredity and variation. ठीक है, इनहेरिटेंस या हेरिडिटी एक ही बात होती है. ठीक है, इनहेरिटेंस हेरिडिटी मीन्स हम जो कैरेक्टर्स जो है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो पास आउट हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस या हेरिडिटी. ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुवांशिक. कहते हैं ना खानदानी है, तो ये खानदानी या अनुवांशिक मतलब क्या होता है, इट इज़ हेरिडिटी और इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. ओके, सो जेनेटिक्स डील विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन. सपोज़ कि एक पर्सन है जिसको डिटेक्ट हुआ है कि इसको कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब क्या हुआ कि उसकी पूरी लाइफ, उसका जो पूरा फैमिली हिस्ट्री है, उसकी जो फैमिली ट्री है, उसको पूरा इन्वेस्टिगेट किया जाएगा कि अच्छा नहीं इसके दादा को था, इसके पापा को था, पापा को था, दादा को था कि नहीं था. ठीक है, फिर सम अदर कज़न्स आर हैविंग दैट और नॉट,
अर्लियर समबडी हैड इन द फैमिली और नॉट। सो ऐसे मतलब इन्वेस्टिगेट करके हम पता लगा सकते हैं कि उसके अंदर अगर है तो उसके नेक्स्ट जो जनरेशन है उसमें भी पॉसिबिलिटी है होने की या नहीं है। जैसे कि एमनियोसेंटोसिस आई टोल्ड यू कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स को भी वो डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। तो हमें बैठे बैठे तो नहीं आएगा ना ड्रीम की जेनेटिक डिसऑर्डर है फीटस में, प्रोबेबिलिटी हो सकती है। और ये प्रोबेबिलिटी कहाँ से आती है, अगर हमें पहले से पता हो कि इसके मतलब इस पर्टिकुलर कपल के किसी भी मतलब इंडिविजुअल को कोई ऐसी जेनेटिक बीमारी रही हो, ठीक है, तो उसके आधार पर हम ये प्रोबेबिलिटी लगा सकते हैं कि हो सकता है कि डेवलपिंग फीटस के अंदर भी ये चीज़ पाई जाए। तो इसीलिए क्या होता है, एमनियोसेंटोसिस करा के उसको कंफर्म कराया जाता है ताकि दैट चाइल्ड में बी प्रिवेंटेड फ्रॉम दैट, मे बी क्योर्ड फ्रॉम दैट genetical disorder if possible. Okay, next is heredity. It is the transmission of characters from parents to their offspring. ठीक है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो भी कैरेक्टर्स या जो भी चीज़ जीन्स पास होती है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। ठीक है, वेरिएशन इज व्हाट, वेरिएशन इज द डिफरेंस अमंग द ऑफस्प्रिंग्स एंड देयर पेरेंट्स। Then heredity variations, these are genetical and inheritable. Heredity variations का मतलब क्या हुआ कि वो चीज़ें, वो कैरेक्टर्स जो है वो क्या है, जेनेटिकल है और वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट होने की कैपेबिलिटी रखती है। तो ऐसे वेरिएशंस को हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी वेरिएशंस। Then there are certain environmental variations also. These are acquired and non-inheritable. Okay, for example, suppose there are suppose the child is of short statured. Okay, the child is short statured. Why? Because the parents were also short statured, isn't it? So this is the case of hereditary variation. Yeah, suppose the father was hemophilic, ठीक है, उनको हीमोफीलिया था, तो पॉसिबिलिटी है कि जो उसका सन होगा उसको भी हीमोफीलिया होगा। तो ये क्या है, ये जो कैरेक्टर था ये हेरिडिटरी था। ठीक है, लेकिन इन्वायरमेंटल वेरिएशन क्या होता है कि हेरिडिटरी वेरिएशन क्या है, बाय बर्थ है, बाय डिफ़ॉल्ट उस प्रोजेनी में होगा ही होगा। ठीक है, लेकिन एनवायरमेंटल वेरिएशन क्या है कि कोई प्रोजेनी है, ठीक है, ही इज़ लिविंग एंड ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम ही इज़ एक्सपोज टू अ सर्टेन टाइप ऑफ any type of condition due to which some changes occurred in him or her. अब चूँकि वो लाइफ टाइम में उसको अक्वायर हुआ है, वो पहले से उसके जीन्स के अंदर या उसके सेल के अंदर नहीं था, तो तो क्या होगा, ऑफ कोर्स क्या होगा कि जो उसकी नेक्स्ट जनरेशन होगी उसमें वो पास आउट होने का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ अ पर्सन इज़ सपोज ही हैज़ डेवलप्ड कैंसर, ओके, स्किन कैंसर। तो स्किन कैंसर जो होता है वो मोस्टली जो है इट इज़ नॉट जेनेटिकल, ठीक है, रेयरली जेनेटिकल होता है, वो रेयरली हेरिडिटी होता है। तो अब क्या है कि द पर्सन इज़ नॉट एक डिज़ीज़ होता है थैलेसीमिया, ठीक है, उसमें ब्लड का थोड़ा सा फॉर्मेशन में डिस्टर्बेंस होता है, या सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, तो उसमें भी ब्लड का अच्छे से फॉर्मेशन नहीं होता। तो सिकल सेल एनीमिया क्या है, वो हेरिडिटरी डिजीज़ है, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो उसके कहीं ना किसी चाइल्ड में नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हो गई होगा। लेकिन कैंसर क्या है कि वो नॉन इनहेरिटेबल है, नॉन जेनेटिकल है, तो वो ऑब्वियसली क्या होगा कि उसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है कि वो उसके नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हो। और ये वेरिएशन जो था ये इसके माँ बाप में भी नहीं था, ये अचानक से इसको कैंसर हुआ। तो ये जो सडन वेरिएशन हो रहा है इन्वायरमेंटल कंडीशन में एक्सपोज रहने, हो सकता है कि वो ऐसी जगह काम कर रहा हो जहाँ पे हार्मफुल रेडिएशंस आ रही हों जिनकी वजह से उसको कैंसर हो गया। तो मतलब वो किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट की इफ़ेक्ट से उसको कैंसर हुआ, जिसकी वजह से उस वेरिएशन को हम जेनेटिकल नहीं कह सकते। ठीक है, तो जो चीज़ जीन्स में ही नहीं है हमारे, वो अगले जनरेशन में हम क्या ट्रांसमिट करेंगे। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल वेरिएशंस कैसे हो गए, नॉन इनहेरिटेबल, बिकॉज दे आर एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल। ओके, now next is the father of genetics, that is Gregor Johann Mendel. So he is known as the father of genetics। ठीक है, मॉडर्न जेनेटिक्स यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा है,
He is not the father of modern genetics, he is just the father of genetics. So Gregor Johann Mendel developed the principle of heredity while studying 7 pairs of inherited characteristics in pea plants. Okay, so Gregor Mendel जो है, he studied the principle of heredity while living in a monastery, and there he chose pea plant for his investigation purpose. And in pea plant also he selected only 7 characters, 7 pairs of inherited characters of the pea plant for his study purpose. ठीक है, 7 pairs का मतलब क्या हुआ, ये we will be discussing later on. Okay, 7 pairs of characters, and that too ऐसे characters जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास हो रहे हों. ठीक है. Although the significance of his work was not recognized during his lifetime, it has become the basis for the present day field of genetics. Okay, so Gregor Johann Mendel, his work unfortunately remained undiscovered or remain insignificant for many years, because he used certain statistical and mathematical concept to prove his point of view. Okay, plus at that time Darwin also gave his theory of natural selection, so the scientists of that time were very much busy with the Darwinian theory, and the concept of genetic by Gregor Johann Mendel remained undiscovered or insignificant for many years. Okay, so what was Mendel's approach? He conducted hybridization process, that is artificial pollination or cross pollination experiments, for 7 years, that is 1856 to 1863, and proposed the law of inheritance. Artificial hybridization we had already seen. What is artificial hybridization? Ki the pollen grains of the desirable character is only allowed to pollinate the stigma of a desirable flower. Okay, so that a desirable plant with a desirable character can be produced. So that is artificial hybridization. So what he did was he conducted his experiment on pea plant for 7 years by this method of artificial hybridization. Then he applied statistical analysis and mathematical logic for biology problems. Large sampling size, greater credibility to data. ठीक है, पहली बात क्या किया उन्होंने, पहला तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया पी प्लांट पे हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू. उसके बाद जो भी रिजल्ट्स थे या जो प्रोबेबिलिटी थी उन्होंने थोड़ा सा स्टैटिस्टिक लगाया उसमें और मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट लगाया और बहुत ही टैबुलर और बहुत ही डेटाबेस फॉर्म में उसको प्रिपेयर किया अपने रिज़ल्ट को, एक्सपेरिमेंट को. ठीक है, प्लस उन्होंने बहुत लार्ज सैम्पल लिया, क्योंकि ये ऑब्वियसली श्योर नहीं है कि अगर हम एक पर्टिकुलर, जैसे हमने पढ़ा था ART में असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी इन ह्यूमंस, कि हम मल्टीपल ओव्यूलेशन करा रहे हैं, कई सारे एग्स को इंड्यूस करा रहे हैं एक फीमेल में, ताकि जो है वी कैन बी मोर ऑन द सेफर साइड कि पता नहीं पर्टिकुलर एग विल फर्टिलाइज प्रॉपरली और नॉट, वी विल गेट द डिज़ायरेबल रिजल्ट और नॉट. इसलिए क्या है कि बल्क में ही एक एग हम कलेक्ट कर लेते हैं, ताकि बार बार जो है मतलब कि चांसेस रहे कि वो अगर फेल हो गया एक एक्सपेरिमेंट तो हम दोबारा उसको कंडक्ट करा सकें. इसीलिए यहाँ पे क्या था कि मेंडल ने भी जो अपना सैम्पलिंग वो था, नंबर था, उसको थोड़ा लार्ज रखा, ताकि एक में नहीं रिजल्ट आएगा तो दूसरे में रिजल्ट आएगा, दूसरे में नहीं आएगा तो तीसरे से पता चल जाएगा. सो लाइकवाइज. ओके, सो ही यूज्ड अ वेरी लार्ज सैम्पलिंग साइज विच गेव हिम अ ग्रेटर क्रेडिबिलिटी टू द डेटा. देन he conducted his experiments only on true breeding pea lines, continuous self pollination. सबसे पहला काम इन्होंने क्या किया कि सपोज़ इनको वायलेट फ्लावर, पी फ्लावर पे उनको अगर एक्सपेरिमेंट करना था, तो वायलेट फ्लावर जो है कोई ज़रूरी नहीं है कि एक जनरेशन में अगर वो प्लांट वायलेट दे रहा है तो दूसरे में भी वो वायलेट ही दे. तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि कंटिन्यूसली कई जनरेशन तक उन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन कराया, जब तक कि वो श्योर नहीं हो गए कि ये पर्टिकुलर प्लांट जो है वो प्योर हो गया हो कि मतलब कि वो अब हर जनरेशन में सिर्फ और सिर्फ वायलेट फ्लावर ही देगा. मतलब कि वो तब तक उसको क्रॉस कराया, सेल्फ पॉलिनेट कराया, जब तक कि उसमें से सारे जो हेटेरोजाइगस जीन्स थे वो हट गए
और वो होमोजाइगस हो गया उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए. व्हाट इज़ हेटेरोजाइगस होमोजाइगस आई विल बी टेलिंग यू लेटर ऑन. ओके, सो बेसिकली इन्होंने क्या किया कि ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स ली. वैसे पी प्लांट्स को क्या किया कि कई जनरेशन्स तक उसको सेल्फ क्रॉस कराया उसको, ताकि क्या हो कि कई जनरेशन तक वो प्योर लाइन प्रोड्यूस हो सके. और फिर उसके ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए. ठीक है, ये लाइन जो है, दिस लाइन विल बी मोर क्लियर टू यू व्हेन यू विल बी proceeding in this chapter, when you will be acquainted with the words like homozygous, heterozygous and the laws. Okay, then the confirmation of inference from experiments on successive generation of test plants proved general rules of inheritance. और finally उन्होंने अपने experiments से confirm किया कि जो एक पर्टिकुलर टाइप का जेनेटिक पैटर्न होता है, एक इनहेरिटेंस पैटर्न होता है, विच इज़ फॉलोड बाय एवरी individual plants and animals, means it is universal. Okay, and on the basis of that experimental results, he gave 3 general rules of inheritance, which is the basic, which is the pillar of genetics. Okay, next is we will be seeing some more terminologies, that is phenotype, genotype. What is the difference between phenotype and genotype? ठीक है, तो phenotype और genotype को पढ़ने से पहले we should know कि what is a gene. ठीक है, so what is gene and what is DNA? What is the difference between DNA and gene? So the basics, the smallest functional and structural unit of a chromosome is termed as DNA, and the smallest and functional unit of the DNA, the smallest structural and functional unit of the DNA is termed as gene. ठीक है, मीन्स क्रोमोसोम का सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल और फंडामेंटल यूनिट जो होता है, सबसे छोटा यूनिट, उसको हम क्या बोलते हैं? डीएनए. ओके, और डीएनए की सबसे छोटी जो यूनिट होगी, फंक्शनल यूनिट, उसको हम क्या बोलेंगे? जीन. और हर एक जीन रिस्पॉन्सिबल होता है एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए. ठीक है, समझ में आई बात? एक क्रोमोसोम है, उसका सबसे छोटा पार्ट जो होगा दैट इज़ डीएनए, और डीएनए का जो सबसे छोटा पार्ट है दैट विल बी कंसिडर्ड एज वन जीन. और हर एक जीन रिस्पॉन्सिबल है एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए. ठीक है, और हर एक जीन जो है वो एक्टिवेट होती है या एक्सप्रेस होती है किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर में विद द हेल्प ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोटीन. इसका मतलब क्या हुआ कि डीएनए से प्रोटीन और फिर प्रोटीन से पर्टिकुलर कैरेक्टर का एक्सप्रेशन होता है. ठीक है, तो कोई भी एक जीन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए, और वो कैरेक्टर कैसे एक्सप्रेस होता है? विद द हेल्प ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटीन. ठीक है, दिस मच इज़ अंडरस्टूड. ओके, नेक्स्ट इज कि कोई कैरेक्टर है, ठीक है, वो गवर्न हो रहा है किसी एक पर्टिकुलर जीन से. ठीक, तो हमें पता है कि जाइगोट क्या है? इट इज़ डिप्लॉयड इन नेचर, क्योंकि उसमें एक सेट ऑफ क्रोमोसोम फादर के हैं, एक सेट ऑफ क्रोमोसोम मदर के हैं. ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल में 2 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ये पता है. एक सेट ऑफ क्रोमोसोम फादर के होते हैं, एक सेट जो है वो मदर के होते हैं. अब क्रोमोसोम्स में हमने पढ़ा है कि जीन्स होते हैं, डीएनए होगा और डीएनए में जीन्स होगा. इसका मतलब हाफ सेट ऑफ जीन्स जो है वो फादर के होंगे और हाफ सेट ऑफ जीन्स वो है मदर के होंगे. ठीक है, सो इट इज़ पॉसिबल. अब कुछ जीन्स क्या होते हैं? सम ऑफ द जीन्स आर डोमिनेंट इन नेचर, कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिव होते हैं, तो वो अपने आप को फुली एक्सप्रेस कर पाते हैं. ठीक है, जैसे कि हम नॉर्मल लाइफ में इंडिविजुअल्स ले लें कि सपोज 2 siblings are there, 1 brother 1 sister, so it may be possible, or 2 sisters or 2 brothers, it may be possible that one of the child is more dominant, more expressive, more broad minded than the other. तो जो अग्रेसिव होगा, डोमिनेंट होगा, ऑब्वियसली वो क्या करेगा? अपने आप को हर जगह एक्सप्रेस करेगा. ठीक है, हर जगह वो मेन बन के रहने की कोशिश करेगा. और जो बेचारा
थोड़ा कम नेचर का है, थोड़ा माइल्ड नेचर का है, वो क्या करेगा, एडजस्ट करेगा, ठीक है जाने दो उसको, बोलने दो, ठीक है, ऐसे होता है ना। तो उसी तरह से जीन्स का भी है कि हमारे बॉडी, हमारे सेल में जो है जो 2 सेट्स ऑफ जीन है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है, 3 तरह की पॉसिबिलिटीज़ है। या तो दोनों हमारे जीन्स डोमिनेंट होते हैं, ठीक है, या एक डोमिनेंट होगा, एक जो है वो रेसेसिव होगा, ठीक है, या दोनों रेसेसिव हो सकते हैं, ठीक है। सो दिस 3 कंडीशंस आर देयर, यू गॉट इट। फर्स्ट कंडीशन इज कि आइदर बोथ पेयर्स ऑफ जीन, ठीक है, बोथ द जीन्स इन अ पेयर आर ऑफ द डोमिनेंट नेचर, ठीक है, और द पॉसिबिलिटी कैन बी बोथ ऑफ द जीन्स आर रेसेसिव इन नेचर, रेसेसिव मतलब बहुत डोमिनेंट नहीं है, ठीक है, सप्रेसिव नेचर के हैं। और तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि एक डोमिनेंट है और एक रेसेसिव है। समझ में आई बात, ठीक है। 2 बच्चे हैं, 2 भाई बहन हैं, तो ये भी पॉसिबल है कि दोनों डोमिनेंट नेचर के, दोनों अपनी मनमानी करते हो, या एक मनमानी कर रहा है एक नहीं कर रहा है, या दोनों जो है वो सब्टल नेचर के हो सकते हैं, ठीक है। तो जब और ठीक है, इतना समझ में आया। नेक्स्ट इज़ कि हर एक जीन को जो है वो एक लेटर से, इंग्लिश लेटर से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई कैरेक्टर है टॉल का, तो उसको हम एक्सप्रेस करेंगे टी से। अगर वो डोमिनेंट जीन है तो हम उसको कैपिटल टी से, और अगर वो रेसेसिव जीन है तो हम उसको स्मॉल टी से करते हैं, ठीक है। तो कैपिटल टी इज़ फॉर द मेन कैरेक्टर टॉल, ओके, एंड स्मॉल टी इज़ फॉर द अनदर कैरेक्टर दैट इज़ ड्वार्फ, ठीक है। दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो बहुत लंबा होगा या छोटा होगा, ठीक है। तो जब किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल में दोनों जीन्स जो है वो सेम नेचर के हो, या तो दोनों ही कैपिटल टी हो, या दोनों ही स्मॉल टी हो, ठीक है, दोनों मतलब टॉल हो, दोनों का नेचर क्या हो, डोमिनेंट हो, या दोनों का नेचर रिसेसिव हो, मतलब दोनों सेट्स ऑफ जीन क्या हैं, एक ही जैसे हों, एक ही नेचर के हों, तब उस कंडीशन में हम उस जीन के सेट को होमोजाइगस कहते हैं, ठीक है। सो द इंडिविजुअल हैविंग आइडेंटिकल जीन्स इन एन एलिलिक पेयर फॉर अ कैरेक्टर इज टर्म्ड एज होमोजाइगस कंडीशन। एलिलिक पेयर क्या है, यही कि एक जीन है उसके 2 फॉर्म्स हैं, टॉल भी हो सकता है और ड्वार्फ भी हो सकता है, ठीक है। तो जब एक जीन के 2 फॉर्म हुए, ठीक है, तो वो 2 फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, अलील, मतलब कि अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन इज कॉल्ड अलील, ओके। एंड व्हाट इज अ जीन, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ डीएनए इज टर्म्ड एज अ जीन, ठीक है। वंस मोर आई एम एक्सप्लेनिंग दैट व्हाट इज डीएनए, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्रोमोसोम इज डीएनए, the smallest unit of DNA is gene, and in every individual there are 2 sets of chromosomes, likewise 2 sets of DNA, likewise 2 sets of genes. One set of gene is from father and one set of gene is from mother. तो अगर दोनों जीन्स आपस में क्या कहलाएंगे, एलिलिक पेयर कहलाएंगे, या एक दूसरे के अलील कहलाएंगे, ठीक है। जैसे कि पर्यायवाची होता है ना, उसी तरह से क्या है, एलील, ठीक है, सिनोनिम्स जैसे होता है वैसे ये एलील है, मतलब एक ही जीन के 2 फॉर्म्स है, ठीक है। अब ये दोनों फॉर्म्स अगर एक जैसे हैं तो उसको हम होमोजाइगस कहेंगे, और अगर ये दोनों जीन्स जो है वो अलग अलग नेचर के हैं तो उसको हम हेटेरोजाइगस कहते हैं, okay. So the individual having identical genes in an allelic pair for a character is called homozygous. For example, या तो कैपिटल टी हो सकता है, दोनों डोमिनेंट नेचर के, या दोनों रेसेसिव नेचर के हों, स्मॉल टी मतलब दोनों का नेचर एक जैसा हो, ठीक। लेकिन द इंडिविजुअल हैविंग अनआइडेंटिकल जीन्स इन एन एलेलिक पेयर फॉर अ कैरेक्टर, then that will be termed as heterozygous. For example, capital T and small t. मतलब कि एक सेट कैसा है, डोमिनेंट नेचर का है, और एक सेट कैसा है, रेसेसिव नेचर का है, ठीक है। सो दैट इज़ होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस कंडीशंस. So for today, this much is enough. Next class we will seeing the laws of Mendel, and then we will discuss what is phenotype and genotype, and what is phenotypic ratio and genotypic ratio.
One thing more, that the definition you should write as it is. You should not manipulate the definitions here, okay, because you will get confused. So try to learn the definition as it is. Okay, thank you.